Hello and welcome to Ignited Minds. Today, in this The Hindu newspaper analysis, as you can see, there are 7 news articles which are highlighted on your screens, and these news articles are very much relevant to UPSC, particularly to your exam. You will also see that how much they are relevant because we'll be discussing some PYQs from prelims and mains of the UPSC. These news articles are supposed to be covered in such a manner that your prelims and mains part gets covered of these topics. Also, there will be take these editorials will be taken care of in such a manner that your static and current affairs, both the dimensions get covered. For example, there is an editorial on Supreme Court fixing the quota, or you can say stopping and asking for the removal of creamy layer and introduction of this creamy layer into SC and ST domain. Now, what does this mean? How the concept of creamy layer evolved? What is the Indra Sahani judgment? All of this will be discussed in the video ahead. I want you to stay tuned till last and make notes along with the discussion. Let's begin the discussion with a UPSC prelims PYQ, which was asked in UPSC 2024. The question was asked about the Environmental Protection Authority. And this question says that according to this Environmental Protection Agency, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emissions, SO2? पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एंड एवरीवन न्यू कि इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एमिटर है, but no one took care of this agency which was already asked in UPSC PYQs earlier. ठीक है, एक ऑप्शन में दिया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अर्लियर इन 2019 पेपर. ठीक है, अब वहां से एक क्वेश्चन इंस्पायर हुआ. इस एजेंसी का लास्ट ईयर एक एडिटोरियल आया था, इसकी अपनी वेबसाइट पे एडिटोरियल आया था. उस एडिटोरियल में ये डिस्कशन हुआ था दैट व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, which was the power plants using fossil fuels. ठीक है, ये न्यूज एजेंसी, this environmental protection agency of United States, this talked about the basics of sulfur dioxide, and this was the key which inspired this question of your prelims paper. And it was written in this editorial that sulfur dioxide emissions are from fossil fuel combustion at power plants. This is the largest source of SO2 emission. So this is how your questions are framed. Further, there were some editorials which were covered in the Hindu, which were related to this sulfur dioxide emission, but they were much ऑफ अ नेचर कि जो 2023 में रिलेवेंट थे. ठीक है, 2023 के नवंबर में पूछे गए आए थे ये एडिटोरियल्स. तो somehow people missed on it because usually people stop reading newspaper and people rely on the current affairs magazines. These are such sources जो current affairs magazine में नहीं कवर किए जाते हैं. Further, there is an explanation to this question. You can just go through it, and everything we discussed is written in this explanation. Let's begin with the discussion, and I want you to understand that the meritocracy in India is currently divided and is, or you can say, subdued, or you can say, uh, has a particular issue, because meritocracy, as per the public administration thinkers, talks about fair opportunity on the basis of merit and qualifications, the selection based on qualification. But Indian meritocracy and the great Indian reservation system has provided the concept of welfare state, and the welfare state concept itself gives origin to reservation. Why so? Because we want positive affirmation, how to call it, positive discrimination, or
affirmative action. अभी हम ये समझेंगे कि ये सारा कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, और अभी का इंडिया का if talk about the proportion of reservation or the proportion of population or the reservation which was proposed, EWS 10%, and OBC currently holds 27% of the reservation quota. SCs hold 15%, STs hold 7.5%, and open merit is holding 40.5%. Now, the debate in the recent times was post the Bihar reservation bill, which talked about 65% of the total reservation, of the total posts which will be announced, or the total uh, educational institution vacancies or the admissions, 65% of it should be reserved for different categories. Why? Because the socio-economic caste census जो बिहार में हुआ था, उसके according there is a proportion of 65% of the population in Bihar. Further, there was also a case pending in Supreme Court जिसमें the judgment came yesterday, and this judgment talked about different dimensions of meritocracy and reservation in India. This judgment also talked about कल के जो डिस्कशन हुआ 2 अगस्त का, जो डिस्कशन हुआ इसमें ये बोला गया that why is there a need of sub classification of scheduled castes. ठीक है, why is there a need कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसीज में लगता है वो एससीज में भी लगना चाहिए, वो एसटीज में भी लगना चाहिए, because this SC and ST is not a monolith. ठीक है, these two also have inside them categorizations. There is more advanced section and less advanced section, and more backward section and less backward section in SCs and STs, and there should be some classification of these schedule castes. Okay? And now the responsibility of this sub classification was fixed as per the judgment on state governments. Okay. So before we could properly understand all of this, लगता है मुझे कि आपको शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा. I want to discuss a bit about reservation in India. Reservation is an old age system in India. It was introduced to correct the historical injustice in India. Historical injustice को ठीक करने के लिए हमने बोला that what state will do, state will take an affirmative action. अब स्टेट अगर affirmative action लेगा तो कैसे लेगा? Basically, it was in 1882 when William Hunter and Jyotirao Phule originally conceived this concept of caste based reservation. ठीक है, इसके बाद it was in 1993 when Ramsay MacDonald gave the communal awards, and in these communal awards there was separate electorate which was given to Sikhs, Anglo-Indians, Indian Christians, Dalits, and Europeans, plus Muslims. मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट इससे पहले कब मिला था? 1909 में और 1990. ठीक है, ये सब चीजें हमें समझ में आ गई कि यहाँ से हमारा जो है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इंस्पायर हो रहा है. बट इस चीज को खत्म करने के लिए देयर केम दिस पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर, in which it was agreed that there won't be separate electorate, but there will be a reservation
not separate electorate but reservation. यहाँ तक हमें समझ में आ गया। एंड यहाँ तक हमें समझ में आने के बाद हमें ये सोचना है कि 1933, सॉरी आई मस्ट करेक्ट, दिस इज 1933, ठीक है 1933। बट पोस्ट दिस पूना पैक्ट होने के बाद, सारी कहानी होने के बाद, इट वाज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस in 1991 that the Mandal Commission came. Okay. And this started the Mandal Kamandal politics in India. यहाँ तक हमें समझ में आ गया। मंडल पॉलिटिक्स क्या था? मंडल पॉलिटिक्स या मंडल कमीशन ने क्या रेकमेंड किया? मंडल कमीशन ने क्या बोला? मंडल कमीशन सेड एज पर आर्टिकल 340 of the constitution, the president appointed the backward class commission, and this commission was appointed in 1978 under the chairmanship of BP Mandal. 78 इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया। इसने बोला क्या कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट कंसिस्ट्स ऑफ 52% ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और 52% ऑफ OBCs. However, in order to make these OBCs represent themselves at government offices, they must be provided with reservation of 27%. ठीक है, government should provide them reservation. This commission also gave 11 indicators to understand the social, economic, and educational backwardness of these classes. Further, this commission also talked about the backward classes among non-Hindus. Then it generated that at an all India level, there are around 3,743 castes. There are around 3,743 castes at national level in India, out of which around 2,108 castes are socially depressed and backward castes. Further, this commission was challenged. The recommendations of these commission, ठीक है, अभी मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन आया 27% 1991, बट 1992 में there was this challenge to Mandal Commission recommendation in Supreme Court under Indira Sahni judgment. इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में क्या बोला गया? बोला गया that the Supreme Court upheld this 27% backward class reservation. However, it struck down the government notification which said there should be 10% government jobs which should be reserved for economically backward classes. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं चलेगी, इट शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, दिस वाज द प्राइम केस in Indira Sahni judgment that it should not be economic judgment, economic backwardness, but social and educational backwardness. Further, सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें बोली इंदिरा साहनी जजमेंट में। क्या क्या बोला? पहली चीज बोली that it should be social and educational backwardness. दूसरी चीज बोली that it should not be more than 50% in total. ठीक है। Third, it also gave the concept of creamy layer. ठीक है। Once this concept of creamy layer gained currency, that judgment said कि जिन लोगों को एक बार ये बेनिफिट मिल गया रिजर्वेशन का, वो लोग दोबारा से बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, बार बार बेनिफिट नहीं ले सकते हैं।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद अगर आप देखो तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज आई रिजर्वेशन के पूरे इस अरीना में, दैट वाज बाय द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट which reserved 10% सीट्स फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इस एक्ट ने 2019 में क्या किया? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? इट रिजर्व 10% सीट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, not socially and educationally but economically weaker sections. This act amended article 15 and article 16 both, दोनों में clauses ऐड किए for the reservation of EWS. 10% reservation was over and above, that was more than 50%, जो already 50% reservation है उसके ऊपर 10%। ठीक है, now if you see all the three things which Indira Sahni judgment gave, they were now overturned to some extent by this judgment, by this amendment, 103rd amendment. ठीक है, however if you see that this judgment is still there, ठीक है, the constitutional provisions which provide for the reservation are there. Let's first understand what is the current judgment, जो अभी सुप्रीम कोर्ट दे रहा है जजमेंट, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट says that there is a list, सोशल का शेड्यूल कास्ट का एक लिस्ट है। वो शेड्यूल कास्ट का लिस्ट कौन बनाता है? वो बनाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस लिस्ट कैन ओनली बी मॉडिफाइड बाय पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 341। ठीक है, द जजमेंट जो आज की जजमेंट है, इट ऑल्सो रेफर्स टू इंदिरा साहनी जजमेंट, सेज दैट देयर शुड बी क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसीज into backward and more backward categories. Similarly, there should be classification of SCs and STs into some backward and more backward tribes. Further, this judgment first says this subclassification because it says that it is the constitutional duty. States can subclassify within the presidential list. प्रेसिडेंशियल लिस्ट के अंदर वो चेंज कर सकते हैं और वहां पे क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं फॉर मोर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन कोटा। This is constitutional under Article 15 clause 4 and 16 clause 4. This is constitutionally mandated. ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। Why? Because SCs are not a homogeneous group. They vary in the degree of their backwardness. Further, in 2005, E.V. Chennaya case verdict, which prohibited sub-classification, this case verdict was overruled in this judgment. ठीक है, ये भी याद रखना है। ईवी चेन्नैया केस वर्डिक्ट, ये किस से रिलेटेड था? ये कैटेगराइजेशन से रिलेटेड था, सब क्लासिफिकेशन से रिलेटेड था। उसका जजमेंट अभी ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंडीशंस फॉर सब क्लासिफिकेशन, कि कैसे किस बेसिस पे हम सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दैट इज टू जस्टिफाई द एम्पेरिकल डेटा। तो आपको डेटा देना होगा अबाउट दी एससीज, कि कौन से ऐसे कास्ट है, कौन से ऐसे सब कास्ट है जो लेस बैकवर्ड है एंड मोर बैकवर्ड है। once you give data, then only you can produce the sub classification. Then comes the creamy layer concept. 4 out of the 7 judges who were present in this judgment, they recommended that creamy layer का जो concept है ये SCs ST पे भी लगना चाहिए। Very much important point. ठीक है, currently the creamy layer concept is only applied to OBCs, not to the others, but judgment says this should apply to others. Now इस चीज को implement करने के लिए there should be a law or a regulation by the government legislature, then only it will be implemented. Implications of this debate are that this will change the scenario of reservation in India. There are reactions and confusion among some Dalit scholars and activists about the judgment, that how this judgment will happen and how this judgment will will frame a way forward for the reservation in India. Further, हमें ये चीजें याद रखनी है, कुछ चीजें हमें याद रखनी है इस जजमेंट के अलावा, और भी कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए।
कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और प्रोविजंस। सबसे पहला है पार्ट XVI, that is part 16, which deals with the reservation of SCs and STs in center and state legislature, ठीक है, प्लस आर्टिकल 15 clause 4 and 16 clause 4, which deals with the central government to reserve seats in government services for SC/STs. So this is for services, government services. Further, there was 77th Constitutional Amendment Act, which introduced a subclause into Article 16. Article 16, Clause 4, subclause, not Clause 4, Article 16, Clause 4A. This said that the government can reserve, the government can provide reservation in promotion also. Later, this clause 4A was modified by the Constitution. This clause 4A was modified by the 85th Constitutional Amendment Act in 2001, in which it was written that there will be consequential seniority. मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा. Consequential seniority to SCs and ST candidates while giving them reservation in promotion. इसके बाद there is one more thing which you need to remember is 81st Constitutional Amendment Act, which provided, it was introduced in 2000, which inserted Article 16 Clause 4 subclause B, and this article talks about the vacancies and carry forward of these vacancies which are there in the reserved posts for SC and STs. Thereby it nullifies the ceiling of 50% reservation. How? See, देखो सबसे पहली चीज आर्टिकल 15 clause 4, 16 clause 4, this provides for कि reservation होना चाहिए in the services. 77th Constitutional Amendment Act ने बोला था reservation in promotion, but 85th Constitutional Amendment Act changed it and said कि promotion में reservation होगा, but only on the basis of consequential seniority, कि जो members होंगे SC ST के उनको based on seniority they will be promoted. Further, clause 4B आर्टिकल 16 का ये बोलता है कि जो वैकेंसीज रह गई SC STs में जो फुलफिल नहीं हुई एक साल, उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा अगले साल पे. इट मींस अगर अगले साल में फॉर एग्जांपल 50% रिजर्वेशन था, तो जो पिछले साल की वैकेंसीज है वो भी ऐड हो जाएंगी इसी ब्रैकेट में, विच इवेंचुअली विल ब्रीच द 50% मार्क. क्यों? क्योंकि उसमें पिछले साल की भी रिजर्वेशन है और इस साल की भी रिजर्वेशन है. ठीक है, तो टोटल 50% नहीं होगा, टोटल 50% से ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, यहां तक क्लियर है. प्लस यहाँ पे 2-3 और आर्टिकल्स है जो आपको याद रखने हैं. दैट इज आर्टिकल 30 एंड 330 and 332. These two articles provide for specific representation through reservation of seats in parliament and state legislature. Specific representation, ठीक है, to SCs and STs. Done. उसके बाद 243 and 233, 243D and 233T. This is for municipalities and Panchayati Raj institutions. That is it for now in the reservation section. There is one more article which I want you to understand from the perspective that Kerala में जो अभी लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है that there is no one alive which was found alive in who was found alive in this Wayanad sector. It is said कि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे वो सारे के सारे मर चुके because of the landslide. 189 bodies were found dead. ठीक है. Out of this,
I just want you to understand that there is a political tussle between Home Ministry and state legislature, state CM, in which our Home Minister Amit Shah, he is arguing on this thing that Kerala को बहुत सारी warnings मिल गई थी about heavy rainfall and he highlighted on a motion. उन्होंने एक मोशन पास किया कल पार्लियामेंट में जिसको बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन. कॉलिंग अटेंशन मोशन तब पास किया जाता है पार्लियामेंट में जब कोई इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करना होगा, दैट इशू विच इज ऑफ अर्जेंट नेचर. ठीक है, तो दिस मोशन वाज पास्ड इन was introduced in Lok Sabha yesterday, and this motion talks about the Kerala and its lacunas and its lethargic attitude when it comes to the disaster. Now यहाँ पे हुआ क्या है that Home Minister यहाँ पे बोल रहे हैं that जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने IMD की जो रिकमेंडेशंस थी, IMD के जो warnings थे that there will be very high and severe rainfall in some of the areas in Kerala, उसको इग्नोर कर दिया और उसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा destruction हुई. Otherwise they could have taken some preventive measures. Now let's wait for the editorials and then we will discuss this in detail, that how the twist between the federal nature comes in here. Next important editorial talks about the India and UK story. इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के रिलेशंस कैसे हैं? दिस एडिटोरियल इज रिटन बाय अ सीईओ ऑफ यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, very famous person, Richard McCallum, very well read. Now let's just understand what he talks about. He first of all highlights a 2030 roadmap which has delivered the bilateral trade, and this bilateral trade in 2023 stood at 39 billion euros. What this editorial talks about is first the political context of the Prime Minister Narendra Modi coming to the Modi 3.0 and Sir Keir Starmer coming to the UK as a victory, because in UK there is Labour Party, and Labour Party since independence has been more you can say that harmonious for India's growth. First this, and second we also need to understand that the economic dimension of India and UK relations. First is the bilateral trade, 39 billion euros 2023 ka. The country employs around 8 lakh people in each other's economies. There is a 2030 roadmap which helps in successful strengthening of the ties between the two countries. India's global position talks about the successful G20 presidency in 2030, क्योंकि इंडिया का ग्लोबल पोजीशन अभी इंप्रूव हो चुका है, not only in the international level, not only on the diplomatic front, but also on the space exploration, digital infrastructure, and world's third largest economy. This is India's position on a rise. Further, we also need to understand UK's position on rise. That is why UK is on its toes to sign the FTA with India. इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है, लाइक टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एज पर द रिटर्न ऑन पर डॉलर इन्वेस्टेड इन इंडिया हैज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन हेल्थ केयर, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड नॉलेज ट्रांसफर. दैट इज वाई यूके investment to India is more lucrative. Further, sustainability and climate change. UK is investing in innovative sustainable technologies in India. British banks are providing climate financing to India. These are some of the points जो हमें अपने आंसर्स में लिखने हैं. डिफेंस एंड सिक्योरिटी को लेके यूके कैन सपोर्ट इंडियाज इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स इन डिफेंस टेक्नोलॉजी. फर्दर, यूके हैज इशूड 350,000 visas to Indian nationals in the past year. That is how the relations are evolving in the current dimension. हमें अगर पॉइंट्स लिखने हैं तो हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं अभी के कॉन्टेक्स्ट में, इस साल जो हमारा एग्जाम आएगा उसमें. ठीक है, हम पुराने पॉइंट्स लिखने बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. However, there are some challenges with respect to the taxation policies in the two nations.
फर्दर देयर इज द कार्बन मैनेजमेंट बोर्ड टैक्स, ठीक है, जो यहाँ पे इशू क्रिएट कर रहा है, प्लस देयर आर कार्बन टैरिफ्स, देयर आर टैरिफ्स विथ रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये सब चीजें हैं। हावेवर न्यू रोड मैप जो इंडिया का है फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं विकसित भारत रोड मैप, this roadmap should also synchronize with the roadmap of 2030 with UK। ये दोनों रोड मैप्स बराबर होने चाहिए with the other countries, with the UK and the India's domestic growth, ठीक है। The next editorial is critical and I want you to understand it properly। There is the pumped storage project। What is a pumped storage project and why is it in news? और इस पे बजट में इस साल क्यों चर्चा हुई है? The Union Budget 2024 and 2025 proposed a policy to promote the pumped storage projects, and it said that this will be brought out for electricity storage and facilitating smooth integration of growing share of renewable energy with its variable and intermittent nature। क्या कर सकते हैं हम इसमें? Why is pumped storage important? India has planned and created an ambitious 500 gigawatts of non-fossil fuel energy by 2030। ये हमारा टारगेट है, 500 गीगावाट्स की एनर्जी हमें बनानी है। बट द प्रॉब्लम इज इट हैज क्रिएटेड ओनली 23 गीगावाट्स इन अराउंड 2 years। अब आगे क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे दो की सोर्सेज हैं हमारे पास जहां से हम नॉन फॉसिल एनर्जी बना सकते हैं। कौन कौन सा है? एक है विंड, दूसरा है सोलर एनर्जी। अब दोनों को हम यूज कर सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं विंड और सोलर एनर्जी में। जैसे इंडिया के पास जो विंड एंड सोलर एनर्जी को लेके एवेन्यूज है, लाइक यहाँ पे हमारे पास तमिलनाडु में ऑन अ समर डे सोलर प्लांट इन तमिलनाडु करंटली प्रोड्यूसेस अराउंड 5000 मेगावाट्स एट नून, ठीक है, 5000 मेगावाट्स एट नून। बट when it comes to the evening or sunset, the vagaries of wind energy and solar energy both vary। क्योंकि विंड एनर्जी में भी तमिलनाडु हैज पीक्ड एट 17,000 मेगावाट्स ऑन डेली बेसिस दिस ईयर, बट जुलाई में इट वाज ओनली अराउंड 5,000 and the maximum solar energy reached was 5,000। Wind energy was 5,000, solar energy was 5,500 to 12। So the problem here is that wind and solar energy does have fluctuations। Now in fluctuations को कैसे cater किया जाए? For example, विंड बेस्ड पावर प्लांट है या सोलर बेस्ड पावर प्लांट है और वो प्रोड्यूस कर रहा है फॉर एग्जांपल 5000 मेगावाट्स, ठीक है। अगर वो 5000 मेगावाट्स प्रोड्यूस कर रहा है और डिमांड अभी है 6000 मेगावाट्स की, तो इमीडिएट बेसिस पे देयर शुड बी समथिंग which should support it, which should substitute it with 1000 megawatts of energy। Once it substitutes it with its 1000 megawatts of energy, what should we develop in that scenario? जो 1000 megawatts की एनर्जी है वो कहां से डेवलप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? उसी के लिए ये पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स आए हैं। अब कैसे कर सकते हैं इनको? लाइक डज इंडिया हैव पंप स्टोरेज? इंडिया डज हैव पंप स्टोरेज। कितनी पंप स्टोरेज है इंडिया के पास? 3.3 गीगावाट्स, ठीक है। कहां कहां पे है? नागार्जुन सागर डैम, कंदाना, कदमपराई, पंचेत एंड भीरा। ये 5 लोकेशंस अपने नोट्स पे लिख लो और इनको याद कर लो। ये 5 लोकेशंस पूछी जा सकती है प्रीलिम्स के पेपर में। वन थिंग, चाइना के पास कितना है? 50 गीगावाट्स ऑफ पंप स्टोरेज। नाउ द गैप इज अराउंड 47 और 46 गीगावाट्स, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में। इसी को केटर करना है। चाइना के पास 50 गीगावाट्स है पंप स्टोरेज की, विच सपोर्ट्स अराउंड 1300 गीगावाट्स ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। और इंडिया के पास 3.3 गीगावाट्स है किसकी? पंप स्टोरेज की। अगर हम इस स्टोरेज को बढ़ाएं तब जाके हमारा सोलर एंड विंड एनर्जी और ज्यादा डेवलप हो सकता है। अब ये पंप स्टोरेज होता क्या है, ये कैसे काम करता है? ये सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? कि ऊपर हमने एक रिजर्वायर बनाया, पहाड़ के ऊपर थोड़ी सी हाइट पे हमने एक रिजर्वायर बनाया
दूसरा रिजर्वायर हमने नीचे बनाया। ये दो टाइप्स का रिजर्वायर हो सकता है। ये जो नीचे वाला है लोअर रिजर्वायर, इट कैन बी ऑन द रिवर, ऑफ द रिवर। ठीक है, यहाँ पे या तो वाटर स्टोर करके रखा जाएगा, कहीं से ला के वाटर स्टोर किया जाएगा, या तो यहाँ पे जो वाटर स्टोरेज होगा ये रिवर के साइड का ही होगा, यहाँ से रिवर बह रहा होगा। ठीक है, दो चीजें। अब होगा क्या, यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ है और यही टरबाइन एक्ट करेगा एज अ पंप। ठीक है, एज अ पंप इट विल पंप दिस वाटर ऑफ लोअर रिजर्वायर टू अपर रिजर्वायर। आप बोलोगे इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाएगी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। यहां से हमने पंप किया ऊपर पानी, बट ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? ये वो वाली इलेक्ट्रिसिटी है जो नॉन फॉसल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास सरप्लस एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है, हमने पानी ऊपर स्टोर करके रखा, बट जब हमारे पास ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी एनर्जी की, उस टाइम पे हमें यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देनी है, तो हम ये पानी यहाँ से छोड़ेंगे, ये टरबाइन चलेगा और ये पानी इस लोअर रिजर्वायर में इकट्ठा होगा। ये टरबाइन चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई और हमारी डिमांड फुलफिल हो गई। ठीक है, दैट इज इट हाउ इट वर्क्स। अगेन, once our non-fossil fuel based energy like solar and wind energy starts to generate the surplus, उसी टाइम पे हम ये लोअर रिजर्वायर का पानी वापस दोबारा से ऊपर रिजर्वायर में भेज देंगे। दिस इज अ लूप विच विल रन। ठीक है, यहां तक हो गया पंप स्टोरेज। पंप स्टोरेज आपको समझ में आ गया। और इसके बाद अगर समझना है तो दैट इज दिस नेक्स्ट एडिटोरियल विच टॉक्स अबाउट द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट। यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट कौन अभी इलेक्ट हुआ है? यूरोपियन काउंसिल का डिसीजन आया है कि उर्सुला वॉन देर लेयनीज, उर्सुला वॉन देर लेयनीज, शी विल बी, शी वाज ऑन द कैंडिडेचर कि उस उनको यूरोपियन काउंसिल का डिसीजन सपोर्ट चाहिए था फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट। ठीक है, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट होना था। अब यूरोपियन काउंसिल का जो ये डिसीजन होता है, या यूरोपियन काउंसिल या यूरोपियन कमीशन में जब कोई प्रेसिडेंट बनता है तो वो कैसे बनता है, उसको दो स्टेजेस पास करने पड़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन है क्या? यूरोपियन यूनियन तमाम यूरोप की कंट्रीज का जिन्होंने अग्री किया है। इट इज अ यूनियन ऑफ 27 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज है? 27 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्री है इसमें? फिनलैंड है, स्वीडन है, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। यू कैन रिमेंबर देम बाय ELL, ईल। फर्दर वी हैव आयरलैंड, वी हैव डेनमार्क, वी डू नॉट हैव यूके। यूके हमारे पास नहीं है। ठीक है, डेनमार्क। यहां तक हो गया हमारा। ठीक है, वी कैन रिमेंबर ऑल ऑफ दीज बाय IDSF। ये चार हो गई, ये तीन हो गई, सात हमारी यहाँ पे कंट्रीज हो। इसके बाद नेक्स्ट देयर इज नेदरलैंड, देयर इज बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस। ठीक है, फर्दर वी हैव इटली, फ्रांस, पोर्चुगल एंड स्पेन। ऑल ऑफ दीज कंट्रीज मस्ट बी रिमेंबर्ड। ठीक है, इनको समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे लाइकनस्टीन नहीं है। एंड देयर इज वन मोर कंट्री विच इज देयर इन द मेडिटेरेनियन सी, जिसका नाम है सिप्रस। दिस इज एन आइलैंड कंट्री इन द मेडिटेरेनियन सी। सिप्रस अलग से एक कंट्री है। Further, there is one more country on this island known as Malta. ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स। देर आर 27 मेंबर्स। दे फॉर्म अ ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिटी। यहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिटी दोनों है। आउट ऑफ दीज 27 कंट्रीज, 19 कंट्रीज यूज यूरो एज देयर करेंसी। ऑफिशियल करेंसी इनकी यूरो है। 8 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स, दे डू नॉट यूज यूरो एज देयर करेंसी। अब ये 8 कौन कौन से हैं जो यूज नहीं कर रहे हैं एज यूरो देयर करेंसी? कौन कौन सा है? बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड एंड रोमेनिया एंड स्वीडन। ये 8 कंट्रीज यूरो यूज नहीं करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया।
What are the objectives of this European Union? They want peace, they want values, they want well-being of all of their citizens. Plus, they want to combat social exclusion and discrimination. Basically, the ideals of democracy. However, with a united goal of growing together. इसके साथ साथ, how was this European Union formed? तो बेसिकली ये बना क्यों था? ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना, बिकॉज दे वांटेड यूरोपियन इंटीग्रेशन। ठीक है, वाई? टू प्रिवेंट एक्सेसिव नेशनलिज्म। क्योंकि अगर आपको याद हो, वर्ल्ड वॉर्स, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल या उससे पहले के वॉर्स, हमेशा से, बहुत टाइम पहले से इन सब के बीच में वॉर चल रहा था। क्यों चल रहा था? बिकॉज फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे एक्सेसिव नेशनलिज्म था। एक्सेसिव नेशनलिज्म को किन लोगों ने, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, लीडर्स थे, हिटलर था, ठीक है, मुसोलिनी था, उन लोगों ने इतना ज्यादा वायलेट किया उस चीज को, एक्सेसिव नेशनलिज्म को, और ये लोग वॉर पे चले जाते थे। बहुत सारे वॉर्स हो गए एंड द कल्मिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज वॉर्स वाज वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। अब उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए इन लोगों ने एक यूनियन बनाया कि हम सब लोग एक ही हैं, हम आपस में दुश्मन नहीं लेंगे। ठीक है, इसीलिए। और ये हुआ कब? ये हुआ 1946 में। 1946 में इट वाज विंस्टन चर्चिल who went further and advocated the emergence of United States of Europe. ठीक है, United States of Europe. And then came the treaty 1952 में। कौन सी ट्रीटी बनी? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी was found under the Treaty of Paris in 1951। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई 1951 में। 1951 के बाद 1952 में ये एक ऐसी कम्युनिटी बनाई इन्होंने जिसका नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस बढ़ते गए, बनते गए। जैसे इसी पेरिस ट्रीटी के अंदर देयर वाज अ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हिच वाज फॉर्म्ड। दिस कोर्ट ऑफ जस्टिस was called as Court of Justice for the European Communities 2009 तक। इसके साथ साथ दे ऑल्सो फॉर्म्ड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, दे फॉर्म्ड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। बहुत सारे ऐसे नेशन, छोटे 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 ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए ताकि ये लोग क्या करें? यूनाइट हो जाएं एक जगह। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे थी, दैट वाज लिस्बन ट्रीटी which was signed in 2007। लिस्बन ट्रीटी ने क्या किया? लिस्बन ट्रीटी ने बनाई एक यूरोपियन कम्युनिटी, ठीक है, जिसमें आज की डेट में ईईसी, ईएईसी, ईसीएससी, ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, लाइक अभी मैंने बोला यूरोपियन कोल एंड स्टील ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी, ये सारी कम्युनिटी जितनी भी थी वो सारी खत्म करके एक कम्युनिटी बनाई एंड इसका नाम रखा। इस कम्युनिटी का काम क्या था? दिस वाज अ कम्युनिटी व्हिच विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। इसका काम क्या था? इसमें इंस्टीट्यूशन सेम ही थे, बट दिस वाज फॉर मोर कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द अदर कम्युनिटीज। इसके बाद 2016 में एक चेंज आया। 2016 तक यहाँ पे यूके भी पार्ट था, बट 2016 में हुआ ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट क्या था? कि ब्रिटेन ने बोला कि मैं एग्जिट ले रहा हूं यूरोपियन यूनियन से, अब मैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहूंगा। ब्रेग्जिट के लिए यूरोपियन यूनियन, ये यूके ने, ब्रिटेन ने अपने यहाँ एक रेफरेंडम कराया एंड देन यूके पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया और वो यूरोपियन यूनियन से निकल गया यूके। अभी तक हम यूके की ही जो रिलेशंस है इंडिया के साथ वो डिस्कस कर रहे थे एक एडिटोरियल में। इसीलिए मैंने दूसरा एडिटोरियल भी वही लिया जिसमें हम यूरोपियन कमीशन को डिस्कस करें, ताकि हमारे लिए ये बहुत ही आसानी से हमें समझ आ जाए दैट व्हाट इज द एक्चुअल थिंग। यूरोपियन यूनियन का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे चलता है? देखो, ये यूरोपियन यूनियन का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर आता है एक यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, द कमिटी ऑफ रीजन्स। ये सारे लोग क्या करते हैं? ये सारे लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं इन सारी कंट्रीज का एक साथ। अब यूरोपियन काउंसिल में क्या क्या है?
एक तो यहाँ पे है द कमीशन, यूरोपियन कमीशन, दूसरा है यूरोपियन काउंसिल एंड तीसरा है यूरोपियन पार्लियामेंट। अब ये तीनों चीजें सिंक में काम करती है। जैसे मैंने बोला इस कमीशन का प्रेसिडेंट बनना था इनको, ठीक है, इस कमीशन का प्रेसिडेंट बनना था इनको। इनका नाम क्या है? उर्सुला। शी वांटेड टू बिकम द कमीशन का प्रेसिडेंट। अब ये कमीशन का प्रेसिडेंट कैसे बनेंगी? पहले रिकमेंडेशन आएगी काउंसिल से, ठीक है, क्या हम इसको प्रेसिडेंट बना सकते हैं या नहीं। अब काउंसिल में भी वोटिंग होगी, काउंसिल में वोटिंग होगी पहले, तो वहां पे भी मेजोरिटी चाहिए। फिर सेकंड लेवल ऑफ वोटिंग होगी पार्लियामेंट में, ठीक है। वंस शी गेट्स मेजोरिटी फ्रॉम बोथ ऑफ द लेवल्स देन ओनली शी कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन। यहां तक क्लियर है? नाउ द एडिटोरियल टॉक्स अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स। इट सेज कि जो हमारी जॉर्जिया मेलोनी है, नॉट हमारी बट इटली की जॉर्जिया मेलोनी है, इट्स नॉट मेलोडी, इट्स मेलोनी, ठीक है। शी वाज समहाउ angry and she wanted, or the Italian government wanted that they should have their own representative as the European Union का कमीशन का प्रेसिडेंट। बट देयर इज दिस डिबेट कि एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पे, और यूरोपियन यूनियन में किस पार्टी ने किसको वोट किया और कैसे वोट किया, और यहाँ पे सीन क्या है, बस इतना ही समझना है। यूरोपियन यूनियन का एक प्राइम प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रीन डील टू रिड्यूस द नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। बस यहाँ तक हमें इतना ही समझना है बस। यूरोपियन कमीशन जो है ये एक बजट पास करता है जो 7 साल के लिए होता है। बस ये समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई, कैसे प्रेसिडेंट बनता है, क्या होता है, बस इतना ही समझना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना, ठीक है। लास्ट एडिटोरियल ऑफ द डे इज दैट states can now directly buy rice from FCI, says the food minister। अब FCI की एक पॉलिसी है जिसका नाम है ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओपन मार्केट सेल स्कीम, अब ये ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या काम करती है, ये FCI ने क्यों लेके आए? FCI बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, FCI बनाया गया था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1964। It comes under the Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution. FCI is against the backdrop of major shortage of grains। ठीक है, FCI के पास 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, सेम क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और FCI काम कैसे करता है इस पे भी क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला, मिनिमम और द सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स, कि उनके प्रोड्यूस को उनका अच्छा दाम मिल जाए उनको। दूसरा, प्रोक्योर एंड सप्लाई टू पीडीएस सिस्टम। एंड लास्टली इट वांट्स टू स्टेबलाइज ग्रीन मार्केट ऑफ इंडिया। अब ये ग्रीन मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई करता है रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए, वैसे ही एफसीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है ग्रेन्स के प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए। इसीलिए इसने ओपन मार्केट स्कीम लेके आया, ठीक है। अब ये ओपन मार्केट स्कीम में क्या करता है, एफसीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम जितना इसके पास सरप्लस होता है वो ई ऑक्शन के थ्रू ऑनलाइन बेच देता है, ठीक है, सेल ऑफ कर देता है मार्केट में जहां पे इसको लगे। बट नाउ इट हैज सेड कि अभी जो है ई ऑक्शन के थ्रू स्टेट्स को पार्टिसिपेट नहीं करना है तो बाय एन एडिशनल स्टॉक, अगर वो देना चाहते हैं अपने लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा खाना। जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर ऑलरेडी जो 5 kg का राशन मिल रहा है वो अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू होगा, वो चलेगा अभी 5 साल के लिए, ये यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है। तो रिमेंबर दीज 2 थिंग्स। थर्ड, यहाँ पे 16 और फूड आइटम्स है जिनको इंक्लूड किया गया है। ये कौन कौन सा है? इट इज बाजरा, रागी, सूजी, मैदा, बेसन, घी, बटर, ब्रिंजल, एग, ब्लैक पेपर एंड अदर थिंग्स, जिनके प्राइसेस यहाँ पे रेगुलेट किए जाएंगे बस फॉर द स्टेबलाइजेशन फंड, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया?
इतना ही समझना है और इतना ही याद रखना है। लास्टली देयर इज अ यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था 2023 के पेपर में। इट टॉक्स अबाउट ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस। अब हमें बताना है कि ई गवर्नेंस से गवर्नेंस कितनी इंप्रोवाइज होगी, व्हाई इज इट अ क्रिटिकल टूल, हाउ विल इट अरेस्ट द इश्यूज विच आर देयर इन गवर्नेंस। वन, यहां तक हमें समझ में आ गया क्रिटिकल टूल क्यों है, ये बताना है। दो चीजें, ये गवर्नेंस को इंप्रूव कैसे कर सकता है, ये गवर्नेंस के इश्यूज को कम कैसे कर सकता है। देन ई गवर्नेंस हैज अश्योर्ड इन इफेक्टिवनेस, वही ये इंप्रूव कैसे कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी कैसे इंप्रूव कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकता है इन गवर्नमेंट। फर्स्ट, व्हाट इनएडिकेसीज हैम्पर द एनहांसमेंट ऑफ दीज फीचर्स। अब समझना ये है, इसने इंप्रूवमेंट्स किए, इसने इश्यूज को कम किए, दो चीजें इसने कर ली, ये हमने बोला दैट इज व्हाई इट्स अ क्रिटिकल टूल। नेक्स्ट ये पूछ रहा है व्हाट इनएडिकेसीज हैम्पर द एनहांसमेंट। अब जो आप स्टेप्स ले रहे हो इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए, इंप्रूव करने के लिए, अब जो आप इंप्रोवाइजेशन कर रहे हो इसमें कौन से चैलेंजेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस के थ्रू हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया लोकसभा का, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट डिजिटलाइजेशन नाउ। प्रॉब्लम ये है कि जो यूज करने वाले लोग हैं, जिनको वो डिजिटल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, उनके अंदर हेजिटेंसी है, वो नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी अगर हमने ऐसा किया तो दैट थिंग इज जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, here is the answer of this question. You can go through this answer and you can download this PPT from our social media handles. With this, I thank you for being into the discussion. Telegram पे आपको ये मिल जाएगी, ग्रुप्स में, इग्नाइट माइंड्स के ग्रुप्स में आपको ये इजीली मिल जाएगी। ठीक है, with this I wish you all the best. Thank you once again.